felicitation function on behalf of directors and other members success of its students. I am extremely glad to announce that we are having with us two of our greatest stars, Anjali Sharma who secured first rank in India in stenographer's exam conducted by the Staff Selection Commission, and Achal Taggar who secured first rank in India in the exam conducted by Indian Space Research Organization and second rank in India in SPA exam conducted by Delhi High Court. It gives me immense pleasure to announce that this year Happy Institute has got record-breaking performance when more than 65 students out of around 70 were declared successful in SSC written exam, that is a success rate of more than 90%. Happy Institute extends warm greetings to all of you. We hope you all will have a wonderful time here. Now, I would like to invite Sri Harpreet Sir, founder and director of Happy Institute, to welcome the chief guest of. Thank you. On behalf of all the performers, on behalf of all of you, those who are working towards that goal. Thank you very much. Sarika, Popular destinations for aspirants of government jobs. Since inception, it has helped hundreds of aspirants of government jobs in fulfilling their dreams through careful grooming. The fact that we have students coming not only from Keshavpura and adjoining areas but also as far places like Karnal, Panipat, Bangalore, Ghaziabad and Dwarka is a proof of our dedication of students and their faith in us. Students of this institute are working in Honorable President Secretariat, Prime Minister's Office, Home Minister's Office, Supreme Court, High Court, Election Commission, CAG and in almost every department of Government of India, be it Ministry of External Affairs, Railway Board, Income Tax Department, Excise Department, CBI, DRI and ED. At Happy Institute, we are committed to provide the best in the arena, whether it is the coaching for stenography, coaching for competitive examinations, the quality of study material, the test series, etc. With continuous efforts under the dynamic guidance of its founder and director, Sri Harpreet Singh Ji, who is regarded as shorthand guru, we have developed the newer methods of teaching, shorthand which are less time consuming and easier to learn. This has made Happy Institute one of the best institutes of India for students who want to learn stenography. Respected Chief Guest, Mr. A.J.K. Menon, Mohinder Chopra ji, आचार्य अजय तपसी जी, दिलशाद अहमद और बलराज। I am extremely grateful to each one of you for having spared your valuable time
and making this occasion memorable by your gracious presence. सबसे पहले तो मैं मेनन सर का आभार प्रकट करना चाहता हूँ. हमारे साथ हैं मेनन सर, मेरे टीचर, और तब से इतना प्यार है, 37 साल हो गए शायद इनसे पढ़े हुए. जब भी रिक्वेस्ट करते हैं हमेशा मेरे साथ इनका इतना प्यार है कि हमेशा उस रिक्वेस्ट को मान के और हमेशा अपना बिजी शेड्यूल होते हुए भी, आज भी कहीं बिजी थे, कहीं फंक्शन में थे, मैंने जब रिक्वेस्ट किया तो अपना वो फंक्शन भी छोड़ के सर आए. सो थैंक यू वेरी मच. और हम सब आपके मोटिवेशनल वर्ड्स की इंतजार कर रहे हैं. मैं जितने भी इनवाइटीज हैं और जितने भी हमारे स्टार परफॉर्मेंस हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, सबको वेलकम. मेरे को बहुत खुशी हो रही है आज हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे स्टार्स हैं. अंजलि शर्मा, जिसने फर्स्ट रैंक लिया इंडिया में एसएससी स्टंग ऑफिस एग्जाम में, वो हमारे साथ है. आंचल टग्गर, जिसने फर्स्ट रैंक लिया इंडिया में इसरो एग्जाम में, सेकेंड रैंक लिया एसपी एग्जाम में दिल्ली हाई कोर्ट के. कमल, राफिया, दिशा सरीन, मिस्टर मनीष, प्रीति और हर्ष, कौशिक और केशव, ये सब लोग हमारे साथ. अभी शिवानी बता रही थी कि हमारे दो ग्रेटेस्ट स्टार जिन्होंने फर्स्ट रैंक लिया वो हमारे साथ हैं. इनफैक्ट दो नहीं, 3 लोग. एक तो अंजलि, जिसका पहले बता दिया, आंचल टग्गर, ऑल्सो जसकीरत सिंह, ही गॉट फर्स्ट रैंक इन इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरी के एग्जाम. इस बात की भी बहुत खुशी है कि दिलशाद अहमद भी हमारे साथ है. दिलशाद अहमद गॉट 4th रैंक इन इंडिया इन 1989. ये सबसे पहले हमारे कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने हाई रैंक लेने स्टार्ट किए, और इन्होंने एक बार ऐसी शुरुआत की, उसके बाद से तो 37 साल हो गए, हर साल टॉपर्स हमारे कॉलेज से निकले. ये कोई आसान काम नहीं है. चाहे फर्स्ट रैंक लिया है किसी ने, चाहे 40th रैंक लिया है या 72nd रैंक लिया, ये कोई आसान काम नहीं. ये सिर्फ इतनी बात नहीं कि रैंक ले लिया कैसे है, उसके पीछे कितनी मेहनत है मैं जानता हूं. कई महीनों तक मेटिकुलसली ये बच्चे प्लान करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और फिर उस स्ट्रैटेजी पे काम करते हुए बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, कई सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, कई सारी चीजों को देखना पड़ता है. आजकल तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, मोबाइल फोन और व्हाट्सएप और इंस्टा, ये सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, तब जाके ये जो रैंक आप हैप्पी इंस्टीट्यूट पे हमने जर्नी स्टार्ट की थी. जब कुछ टाइम 1989 में मैंने कुछ टाइम के लिए पढ़ाना अलग अलग कॉलेजेस में मैं जाके पढ़ाता था, मैंने बंद कर दिया. 2 बच्चे मेरे पास आए कि हमें तो आपसे ही पढ़ना, घर में मेरे आ गए. मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया, ठीक है अगर कह रहे हैं तो 2 बच्चों को पढ़ा दो. हम एक टेबल लेके आए, और मेरे को याद है उस समय मेरे पास एक 2 व्हीलर स्कूटर होता था. वाइफ को पीछे बिठाया और हम 2 स्टूल लेके आए, 40-40 रुपए के स्टूल आए थे, लकड़ी के स्टूल हम लेके आए और हमने स्टार्ट किया. उसके बाद में अगले दिन कहते 2 स्टूडेंट्स और आना चाहते हैं, फिर हम दोनों जने गए, उसके बाद 2 स्टूल और लेके आए, और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा. बाद में टेबल और आए, और धीरे धीरे वो पूरा का पूरा घर जो हमारा था वो कमर्शियली ऑक्यूपाई हो गया. सारे जगह क्लासेस होनी शुरू हो गई और हमें वहां से शिफ्ट करना. ये 1989 में जब दिलशाद ने 4th रैंक लिया
उसी साल हमारी एक और स्टूडेंट रजनी सहगल, शी गॉट 11th रैंक। उसके बाद से तो इतना हमारे पास क्राउड आना शुरू हुआ कि हमें उस जगह पे संभालना मुश्किल था। खैर सिलसिला चलता रहा। मैंने अपने फादर इन लॉ डॉक्टर राजेंद्र सिंह, उनसे बात किया कि कैसे मैं काम करूं कि हमें सक्सेस मिले। उन्होंने 3 मेरे को मंत्रा दिए थे, वो मंत्रा मैं आज आपको, उन्होंने कहा 3 चीजें अगर आप करो तो आप हमेशा सक्सेसफुल हो। मैं कौन सी? कहते सबसे पहला है हार्ड वर्क, दूसरा है हार्ड वर्क और तीसरा हार्ड। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हमें काम करना पड़ेगा, रिपीटिशन करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और जो भी मेहनत करता है वो नतीजा आप लोगों के सामने है कि फिर उसके बाद में उनको क्या क्या हासिल हो जाता है, शायद ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंच जाता है। ये वर्ड मैं क्यों कह रहा हूँ? जब अभी रिसेंटली रिजल्ट आया अंजलि का, तो हमारे फोन पे बात हुई अंजलि के साथ, तो मैंने कहा अंजलि कैसा लग रहा है? तो फिर को MA मिल गया। कहती सर MA मिलने का मेरे को इतना ज्यादा खुशी नहीं है, ज्यादा खुशी है कि मैंने फर्स्ट रैंक लिया है एंड आई एम फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये सब कुछ सिलसिला चलता रहा हमारा कॉलेज में। जब कुछ लोगों ने ऐसा सोच लिया था, ऐसा शोर सा मचाया था कि स्टेनोग्राफी तो खत्म हो गई, इसमें कोई चांस नहीं आगे, और तो कंप्यूटर आ गए और कंप्यूटर पे सारा काम होता है, स्टेनोग्राफर क्या काम है? जो बच्चे पास हुए, हमारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट इंडिया के सारे जितने इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं उनमें काम करते हैं। प्रेसिडेंट्स सेक्रेटेरिएट में हमारे स्टूडेंट राजेश सरीन PS हैं, अभी उनकी बेटी दिशा सरीन, क्योंकि अब तो 2nd जनरेशन पढ़ने आ रही है मेरे से। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, होम मिनिस्टर के ऑफिस में PS, सारे हमारे यहाँ से लोग काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, MBA में। एक जो गवर्नमेंट जॉब है ये बड़ी ड्रीम जॉब। 70-75 लाख लोग पेपर देते हर साल। पार्लियामेंट में एक रिप्लाई में मिनिस्टर जितेंद्र प्रसाद जी ने बताया था, पिछले 7 साल में 22.5 करोड़ लोगों ने पेपर दिया और 7 लाख टोटल लोग हैं जो पास हुए। 22.5 करोड़ में से 7 लाख सिर्फ पास हुए। तो ये बड़ी मेहनत करके तब पास हुए। मैंने भी UPSC का पेपर दिया था और मैं जॉब भी करता रहा, साथ साथ मैं पढ़ाता भी रहा। और अब एक ऐसा टाइम आ गया था मेरे को 2 चीज़ें करनी पॉसिबल नहीं हो पा रही। मैंने जॉब से अपने जॉब छोड़ने की सोची, जॉब से वॉलंटरी रिटायरमेंट मैंने लिया। जिस दिन मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, मेरे फादर ने बुलाया मुझे, कहते यार क्या कर रहे हैं? मैं तो सबको बोलता हूँ कि मेरा बेटा क्लास 1 ऑफिसर बन गया, तो रिजाइन कर रहा है, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है। मैंने कहा 2 काम मेरे से नहीं हो सकते। तो ठीक है, लेकिन अब जो काम करिए वो भी बिल्कुल शिद्दत से करें। ऐसा ना हो कि तूने रिटायरमेंट ले लिया, सोचे बस मैं तो रिटायर हो गया, मेरे को तो पेंशन आ रही है। और अगर पढ़ाने में जा रहा है तो पढ़ाने में पूरी डेडिकेशन के साथ था। और मेरे फादर अब तो हमारे साथ नहीं है, फादर मदर, लेकिन जिस दिन तक वो थे उस दिन तक वो पढ़ाई करते रहे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहे। उनको पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू 4 चीजें पढ़ना आती थी। और मैथ्स तो इतना बढ़िया था कि एक चीज का हिसाब उनके पास रहता था, किसने क्या, कहां पर क्या करना है, एक चीज का हिसाब उनके पास। तो उनकी जो पढ़ाई है, उनकी जो नसीहत है पढ़ाई की तरफ उन्होंने डाला, इस तरह से जॉब की तरफ डाला
1982 में एशियाड 82 हुए थे। उस टाइम तक मैं रेडियो टीवी का काम करता था और मैं सोचता था गवर्नमेंट का भाव बनूंगा, मैं क्या नौकरी करूँ। ये मेरे फादर ने ही मेरे को डाला इस तरफ। मेरी छोटी सिस्टर के लिए फॉर्म आया, छोटी तो मेरे से तो बड़ी है वो, मेरी छोटी सिस्टर के लिए फॉर्म आया हुआ था, वो एनसीईआरटी में जॉब लग गई। तो डैडी ने कहा कि हाथ को भर दे, देखा जाएगा तेरी जीके कैसी है। जब ये बात आ गई देखा जाएगा तेरी जीके कैसी है, तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पास किया। हमारे टाइम पर ग्रेड डी ग्रेड सी दोनों अलग अलग हुआ करते थे, एक एसएससी लेता था और ग्रेड सी यूपीएससी लेता था। तो मैंने यूपीएससी का ग्रेड सी का टेस्ट पास किया। उसके बाद से बहुत बदलाव आए। पहले ग्रेड सी में एस्से राइटिंग हुआ करती थी, फिर पेपर में बदलाव आए, जो जनरल अवेयरनेस है उसके साथ साथ अब रीजनिंग भी आने लगी। हम उन सारे बदलावों को अडॉप्ट करते चले गए, बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में थ्रू किए, उन सारे चैलेंजेस को पार पाते हुए हम आगे बढ़ते रहे। और जब रिटायरमेंट के बाद 2-3 साल अच्छी तरह बैठ के काम किया, तो हमारे पास 5 यहाँ पर सेंटर्स हो गए थे जहाँ पर हम पढ़ाते। और वो सारे चोपड़ा जी ने सारे सेंटर्स पे खुलवा के दिए थे। लेकिन तभी एकदम कोरोना आ गया और कोरोना ने पूरा का पूरा दुनिया को बंद कर दिया, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद। ये 2020 की बात है। लेकिन जैसे परमात्मा ने करनी होती है, उससे 2 साल पहले से ही हमने अपनी ऐप हैप्पी इंस्टीट्यूट की ऐप स्टार्ट कर दी। और हमें ये तो कभी पता ही नहीं था कि इस तरह वो ऐप काम आएगी। कोरोना के टाइम पर हमने एक दिन भी अपने स्टूडेंट्स को खाली नहीं बैठने दिया, उनको छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं कि सारे जब घर दुबक के बैठ गए थे, और बहुत सारे टीचर्स तो टैक्सली थे भी नहीं उस समय, कभी जूम पे कभी कहीं क्लासेस लेने की कोशिश कर रहे थे। हमारी क्लासेस चलती रही और बड़ी सक्सेसफुल क्लासेस चली हैं। उन क्लासेस में भी हमारा जो पिछला रिजल्ट था, करीब 33 में से 28 स्टूडेंट्स पिछली बार पास हुए थे और वो इंटरनेट पे वो रिजल्ट सर्टिफिकेट लगा। इस बार तो जो रिटर्न एग्जाम हुआ उसमें हमारा परफॉर्मेंस बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। करीब 70 लोग थे जो हमारे यहाँ से पेपर दे रहे थे। 70 में से करीब 65 लोग क्वालिफाई करके वो पास हुए। ये 90% से ऊपर रिजल्ट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भारत का कोई भी कॉलेज नहीं है जो ये कह देंगे हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 90% रिजल्ट है। हमारे यहाँ से बहुत बार ऐसा हुआ कि 90% रिजल्ट। मेरे पास बहुत लंबे बैचेस नहीं होते, बहुत छोटे बैचेस हैं, 40-50-60 लोगों का बैच होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो पास परसेंटेज है वो करीब 90% तक भी बहुत बार जाता है। इस बार 65 स्टूडेंट्स ने पास किया। जो 4-5 लोग पास नहीं हो पाए, मैं उनको फेलियर नहीं कहता, वो फेलियर नहीं है, वो फेल नहीं हुए। बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण कभी उस दिन पर्टिकुलर दिन दिमाग नहीं चला, उस पर्टिकुलर डे पे बीमार हो गए, उस पर्टिकुलर डे पे जो याद किया हो तो ब्लैंक हो गया। और मेरे को मालूम है कि वो सब लोग इस बात को देख के कि हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स पास हुए हैं, उन्होंने अगले साल के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया। तो उनको मैं फेलियर ना गिन के अगले साल के टॉपर्स में गिनता। वो मेरे को मालूम है अगले साल सक्सेसफुल भी होंगे। जैसे मैं आपको बता रहा था कि अब मदर फादर हमारे साथ नहीं है और उनकी बहुत इंस्पिरेशन रही, तो उनकी याद में आज हम एक ट्रॉफी लॉन्च कर रहे हैं। मेरे फादर का नाम था नाजर सिंह, मदर सुजीत और NSSK ट्रॉफी। पहली सर्टिफिकेट, एक शॉप और 5100 रुपये कैश प्राइस उसमें हम देंगे। और इस बार की पहली जो ट्रॉफी है वो हम अंजलि शर्मा को
ये जो 65 बच्चे पास हुए, ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बहुत बड़ा काम किया, मैंने तो अपना काम किया, मेरी जो टीचर्स की बाकी टीम है उन्होंने अपना काम किया, जो मेरी स्ट्रैटेजिस्ट की टीम है उन्होंने अपना काम किया, जो लोग हमें एडवाइस करते हैं क्या करना चाहिए कब करना चाहिए, उन्होंने अपना काम किया। ये सारा हैप्पी इंस्टीट्यूट की जो पूरी टीम है, ये उसका काम है, ये उसको क्रेडिट है। लेकिन अगली बार के लिए हमने सोचा है कि हम 100 पार करें। हमने स्लोगन रखा अब की बार 100 बार। तो ये क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नए हैं, तो ये खास तौर से मैसेज उनके लिए है। तो आई होप सब लोग सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब की बार 100 बार, अब की बार 100 बार। आज तो आई नहीं, सबको कैसे पता लगे? अब की बार 100 बार। यस। और ये हम सारे गेस्ट्स के सामने प्रॉमिस किया है। मेनन सर जो स्टेनोग्राफी के हमारी फील्ड में सबसे सीनियर मोस्ट फैकल्टी हैं, उनके सामने हमने प्रॉमिस किया है। तो अब हमें इस पे काम भी करना पड़ेगा। चोपड़ा जी के सामने, मल्होत्रा जी के सामने हमने प्रॉमिस किया है, तो अब इस पे हमें काम भी करना पड़ेगा। तो अब की बार 100 इसके साथ ही लास्ट में मैं बस एक चीज और आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। सो हाउ इज द जोश नाउ? जो हमारे स्टाफ परफॉर्मेंस है, इनको हम पहले जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है ये स्टार्ट करते हैं। पुराना हो गया वो लगे रहते हैं। आज फोन लगा देखा तो आज ही कर सकता हूँ, हमको तो महीने बनाते हैं। बाकी सभी बच्चे जो उत्तीर्ण होते हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मैं। जैसे आप अनिल जी ने अभी बोला कि हर साल एक बच्चे को अच्छा इनाम मिलेगा, वो इनाम मेरी तरफ से होगा। जो भी रहेगा सबको बहुत बहुत मुबारक और आशा करता हूँ आप ऐसे मेहनत करते रहेंगे। मिस्टर मेनन प्लीज कम ऑन स्टेज और बच्चों को एड्रेस करें, उनमें जोश भर दें और ब्लेसिंग्स अपनी दें। कॉलेज में रोज बात होती रहती है। तो मेनन सर किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, इसलिए मैंने कोई इंट्रोडक्शन दिया नहीं। लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता हो, मेनन सर सीनियर मोस्ट फैकल्टी है ISTM। ISTM एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर सीनियर मोस्ट फैकल्टी है। मेनन सर जैसे सबसे पहले मैंने बताया मेरे टीचर भी थे। मेनन सर रिटायर हुए गवर्नमेंट सर्विस से, उसके बाद भी ISTM में इनका एसोसिएशन जारी रहा और अब गेस्ट फैकल्टी की तरह से जाते हैं। कोई भी ISTM का ट्रेनिंग पूरा नहीं होता जब तक मेनन सर वहाँ नहीं पहुँचते। तो जैसे टिप्स उन्होंने मुझे दिए, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सारे बच्चों को देंगे ताकि वो और अच्छा एग्जाम में एक्सेल कर पाए। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? इतना हैप्पी सर ने, मैं हैप्पी सर नहीं बोलूँगा, प्लीज डोंट माइंड, मेरे लिए तो ही इज लाइक ए फ्रेंड, राइट? सो या नॉट खैर एनी हाउ, ये अगर स्टूडेंट मार्क देते तो बहुत अच्छी बात है, बट आई विल कॉल हिम एज मिस्टर हैप्पी, राइट? I know that he is appreciated. Okay, and first of all, I would like to thank him for inviting me to be the chief guest. Very, very happy occasion. Happy Institute, happy sir, happy occasion. Secondly, I would like to welcome all those dignitaries, those who are sitting here, especially Mr. Malhotra, Mr. Dhingra, perhaps Mr. Chopra, perhaps नाम में शायद मैं इसलिए I don't call the names because I may commit some mistake, right? So all of them जो उधर बैठे, plus all of you, all the students, that is very important for me. And other invitees, those who are here for this occasion. Right?
Then I would like to congratulate all those my friends, young friends, those who are sitting in the first row, wearing a garland that shows they are slightly separate from others, right? Okay. अब आपने वो पिक्चर देखी होगी जिसमें what was that? Three? हाँ? Three idiots. जिसमें वो कहते हैं सर हमें आगे बिठा के अपने बगल में फोटो खींचने की, right? But वो पिक्चरों तक सीमित है, but this is also essential. I don't mind for that. Okay. So apart from that, I congratulate them for achieving this success. They are writing the success story of this institute. Okay? फिर अब मैं जो कहना चाहता हूँ, कहना तो क्या चाहता हूँ, मैं कोई बहुत अच्छा भाषण देने वाला हूँ नहीं। इन्होंने इतना हाइप कर दिया है कि मैं वो हूँ, ये हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक साधारण आदमी हूँ। बट अब मुझे जब इन्होंने बुलाया, I did not hesitate for a moment. You can ask him. He called me one evening. I could not pick up the call. Next morning or during the day, he called me just 1 or 2 days before and said, "Sir, you have to come as chief guest." I said, "Okay, I will come." Why? The question I am asking you, why? I did not hesitate. Instantly, I agreed to be the chief guest. Why? Anybody? हाँ बोलिए, एक सर के लिए और आपके लिए और anybody else? Because we love happy sir. है जी? Because we love happy sir. ठीक है ना सर? We love happy sir. We love happy sir. Apart from that, one thing is very important for me. Apart from all what you have said, I fully agree with that. But apart from that, not only to meet these successful candidates, but to inspire other students, to motivate them, to influence them, so that they also next time when they call me, they should be in the front rows. Not only to celebrate the success of these young boys and girls, but my main purpose is to motivate. That does not, of course, we are with you, plus all of you, mainly with the others, those who are working very hard. Right? Then, हैप्पी सर ने अपने स्पीच में बहुत सारी बातें कही और जो कि मुझे भी लगा बिल्कुल सच कह रहे हैं. The second reason is why I did not hesitate to come as a chief guest. Because I am acquainted with Mr. Happy Sir for the last 40 years. He reduced it to 36. कुछ दिन छुट्टियां की काट लिए होंगे. 3-4 साल छुट्टियां आ जाती है ना. और if you see all these 36 years, तो इसलिए छुट्टियां को इन्होंने छोड़ दिया होगा. But I know him for the last 40 years. Right? We all did the shorthand from the same institute. Where I was a teacher, he was a student. That's the only thing. So on this occasion, I would also like to remember our Mr. Oberoi also, who was our Guru. अपने गुरु का गुरु परमो क्या कहते हैं, गुरु जो है भगवान के रूप में होता है ना. राइट. सो इसलिए मैं आज उनको, आज हमारे बीच में नहीं है, और perhaps he was the chief guest of the last occasion when he conducted the function. आपने किसी लोगों ने रिलीज फंक्शन, हाँ बुक रिलीज था. तो ये 40 साल के अंदर मैंने इनको देखा, बहुत ही हार्ड वर्किंग. और आई फाउंड ए मैन अबाउट 20, I don't know, I don't believe in statistics. I don't know whether I am saying is correct or not.
Around 20 years back, a gentleman called me and said, "Sir, I am leaving my job." I said, "Are you all right? You look physically well. Are you mentally also all right or not? Has something gone wrong with you?" And it was nothing, nobody else but Mr. Harpreet. Maybe around 20 to 22 हो सकता है. Yes, sir. 10 years, maybe 10 years. Right? So he said, "I am leaving my job." A highly paid senior class 1 officer in the midst of his career, he is saying, "I will leave my job." Why? The question again comes, why? मैं बेसिकली पढ़ाता हूँ ना, तो चीज नोट्स हर चीज में सवाल करने की आदत है. Because he wanted to utilize his rest of his life for the society, to give back to the society. I don't agree. I don't agree that he is running lakhs from this. Because I am also from this line, I know about it. How much devotion it requires. Daily, without attending any function, all of us go, छोटी छोटी बातों में हम लोग चले जाते हैं. कहाँ जाते हैं? कोई छोटा सा बहाना मिल गया तो हम लोग चले जाते हैं. शादी है, आज वो है, ये है, करके हम लोग साथ चले जाते हैं. I am asking whether is he able to go to attend all such occasions? No, because that requires devotion. 100% devotion. Unless you have 100% devotion, this first row will be occupied by the visitors. So, what I mean to say is, he said there are 3 mantras for success. Hard work, hard work, hard work. I'm not denying that fact. The whole mantra is, thumb rule is hard work. But I will go little beyond that. I say, apart from hard work, love. Which love? What? Okay. Love what you do. And do what you love. Right? So, don't go under the pressure of the parents or the society. Don't succumb to the pressures of the society that आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दीजिए, IAS बनिए, या मेरा दोस्त तो IAS की तैयारी कर रहा है. Introspect yourself, how much potentials you have. Don't waste this early age, this tender age. This is the best time of your life. Utilize that. किसी को देख करके सोसाइटी में उदा जा रहे हैं, IAS एग्जाम देने तो शॉर्टकट करने चला. Don't go into that. I am a South Indian, still I am speaking Punjabi, you must appreciate that. So don't go under the society's pressures. Love what you do and do what you do. Second thing, he was talking about something about planning. Planning is very important. Right? Planning is important, and if you fail to plan, what will happen? You plan to fail. Last week, last week, I think in ISTM, I'm not only for ISTM, I'm going all over India for various academies and institutes of the state government, central government. Now, next week, Monday, kal hai, I have to go to CBA Academy in Ghaziabad. So, last week I was there in ISTM. 2 of your students were here. In every batch, I find 2 or 3 students from IIT, and they very proudly announce
That sir, we are from Happy Institute, and last time we saw you in the annual function of our institute. मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस साल 2 जने थे, एक मिस्टर मनीष और एक मिस प्रीति, ये दोनों यहीं पे बैठे हैं। और हर साल होते इसमें मुझे 1-2 जने और ऐसे लग रहा था कि they were also first is love what you are doing, then you must have some enthusiasm, passion, zeal, then मुझे करना है, then hard work, regular hard work, not even a single day break, करत अभ्यास के ये पहले वाले लोगों ने ऐसे नहीं लिखा है, रसरी आवत याद थे सिल्फर मतलब पत्थर पे भी निशाना है। एक और है धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुए, पाली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल दे। मतलब एक पेड़ को बड़ा होने तक का टाइम कीजिए। आप ये मत सोचिए कोई देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस है। सक्सेस रिक्वायर इट्स ओन टाइम, बट परसीवरेंस, लगातार नित्य प्रैक्टिस, राइट। सो अपॉर्चुनिटी इज इन योर हैंड, सो टेक एन ओथ, जैसे इन्होंने अभी ओथ दिलाया, एक ओथ लीजिए, ये करना है, नेक्स्ट टाइम आई शुड बी हियर इन दिस फैक्ट्री एंड आई विल कम हियर टू सी यू। सो टिल देन I wish you all the very best. Make proud of yourself. I'm sure they must be feeling very proud, right? And they must. और आप लोगों को भी, you are also a part of it. इनके सक्सेस में आप भी हैं, ऐसी बात नहीं है। आपका साथ मिला तभी ये लोग ये कर। अब इनके साथ आप मिलकर के नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे। And make proud of yourself, make proud of your parents, and make proud of your institute. Okay? So, success requires perseverance, hard work, love what you do. Okay, with that mantra, I think I must close. Thank you all of you for being here. इस टीम में जरूर होते थे। मेरे को एकदम याद आ गया 2019 के बैच में ग्रेड सी में हमारे 7 लोग पास हुए और सातों के सातों को डिफेंस मिनिस्ट्री में। अच्छा, डिफेंस मिनिस्ट्री में बाय द वे वैकेंसीज भी साथ थी। तो वहाँ जब एडमिन सेक्शन में जाके जब ज्वाइनिंग किया, आप कहाँ से? हैप्पी इंस्टीट्यूट से। आप कहाँ से? हैप्पी इंस्टीट्यूट। और मैं सारी डिफेंस मिनिस्ट्री में आ रहे हैप्पी इंस्टीट्यूट। सो थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है सर, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अंचल, ओके, big achievement. Manish. Congratulations. हमारे साथ ISTM में लास्ट around 69 to 70 people were there. He stood up, all of us and started saying this. Thank you for the minutes. Can I get a double? Can I get a double? Double hug एक साथ ही? बीच में। Yeah, let's do it. She was also
Applause for you. Oh, I see. अच्छा, you really deserve. जो मैं अपने लिखता हूँ केवल मैं Income tax. पहले भी पहले छुट्टी Oh, I see. अच्छा. अच्छा है आन्या आहूजा कहाँ पे हुआ? सोनल मान ठीक है गरिमा जैन कृतिका शर्मा प्रवीण युक्ता दास सबसे बड़े यही हैं यहाँ पर तो उनके हाथ से ये एनएसएस के ट्रॉफी जो है दिलवा रहे हैं सो आई रिक्वेस्ट अंजलि टू प्लीज अंजलि ने सिर्फ ये फर्स्ट रैंक ले लिया मैं इस बच्चे को बहुत देर से जानता हूँ पहले इसने ग्रेड डी पास किया इसका पोस्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था शायद बॉम्बे में इसकी पोस्टिंग थी वहाँ से भी लगातार मेरे से बात करती रहती थी क्लास के बारे में क्या मैं करूँ कैसे करूँ
वहाँ बैठ के भी इसका मन में ये नहीं था कि मैं ठीक है ग्रेड डी बनी, मैं आराम से बैठ जाऊँ। लगातार बात करती रहती थी, लगातार इसने जो सर ने परसिवरेंस की बात की, ये बच्चे ने लगातार अपनी तैयारी करने की कोशिश की और आज देखो क्या है। तो ये अंजलि से हम सब लोगों को इंस्पिरेशन लेनी है कि किस तरह से हमें सक्सेस। मैं अंजलि को रिक्वेस्ट करूँगा 2 मिनट के लिए स्टेज पे आके और I just want to thank sir for always supporting and motivating me. And मुझे नहीं लगता कि सर की गाइडेंस के बिना ये कभी पॉसिबल था। सो थैंक यू सो मच सर। और हैप्पी इंस्टीट्यूट को मैं बहुत ढेर सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि जब भी मुझे हमेशा नीड थी तो सर अवेलेबल थे। सर ने कभी ये नहीं बोला कि मैं बिजी हूँ या कुछ भी है। सर ने हमेशा मेरी हेल्प करी है हर वे में। सो थैंक यू सो मच सर। वेलकम ऑल्सो। सो जो भी है मैं आज जो भी हूँ ऑब्वियसली सर की वजह से ही हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच टू हैप्पी सर। ओनली सिर्फ टीचर ही नहीं है वो मेरे लिए, ही इज इक्वलेंट एंड आई ऑलवेज टेक हिम एज माय फादर एज वेल, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे मेरे हैप्पी मोमेंट्स सैड मोमेंट्स मुझे गाइड करा है, वो मेरे साथ रहे हैं। उन्होंने देखा है जब मैं पूरी तरह रोई हूँ उनके सामने, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ टीचर नहीं मुझे फैमिली भी मिली। जसकीरत भैया, ही इज ऑल्सो ही हैज बीन देयर फॉर मी मेनी टाइम्स। सो या आई फील ब्लेस्ड कि मुझे सर मिले एंड उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मुझे बताया कि प्रॉपरली कैसे पढ़ना है, कैसे वो चीज़ हासिल करनी है जिसके लिए आप पढ़ रहे हो। And I'm sure and I would like to say this to everyone who's present here कि आप लोग बहुत अच्छी जगह पे बैठे हो, बहुत ही पॉजिटिव जगह पे बैठे हो और आपको बस यहाँ पे हैप्पी चीज़ें, हैप्पी ब्लेसिंग्स और एवरीथिंग व्हिच इज ब्यूटीफुल, पॉजिटिव, होपफुल, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। मैं सर को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने परफेक्शन क्लास स्टार्ट की थी इस एग्ज़ाम के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, और करीब 1.5 महीने पहले वो क्लास हमारी स्टार्ट हुई। कई बच्चे, क्योंकि वो आजकल वो ट्रांसक्रिप्शन करते नहीं, बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे आए जो ट्रांसक्रिप्शन करते नहीं थे और 150-200 गलतियाँ ट्रांसक्रिप्शन में करते थे। और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये बैच हमारा खराब ही ना हो जाए, कि ऐसा ना हो कि सब गड़बड़ हो गया। 3 घंटे का क्लास हमने सोच के चले थे, लेकिन 4-4, 5-5 घंटे क्लास करवाया और बच्चों ने भी बहुत मेहनत किया। और अभी पिछले 2-3 दिन में जो 2-3 बार टेस्ट लिए, उसमें 100% बच्चे सब क्वालिफाई थे। 15 तारीख को पेपर है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि हमारे सारे बच्चे, जैसा हमारा स्किल टेस्ट का पहले रिकॉर्ड रहा है, स्किल टेस्ट में हमारे रेयरली कोई बच्चा कभी फेल होता है और इस बार शायद फिर ऐसा ही होगा, फेल नहीं होगा। आज तो यही कहना चाहता हूँ, कुछ स्टे एंगेज, प्रोएक्टिव रहें, काम करते रहें, मेहनत करते रहें और आप दोबारा और आगे एग्जाम्स पास करके प्रमोशन के, हायर पोस्ट के आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। सो थैंक यू वेरी मच ऑल। थैंक यू मिस्टर मेनन, थैंक यू।